Hello, my dear student. Welcome to AIS Amit Kumar Pradhan Biology classes. Now today we discuss what is female reproductive system. Today we discuss what is female reproductive system. Female reproductive system. Okay. And female reproductive system consists of a pair of ovaries. Ovaries the primary sex organ and two pair of oviduct present, cervix, uterus, and vagina. This is the complete female reproductive system. What is a pair of ovary? Pair of ovaries, pair of ovaries, a pair of oviduct and uterus, cervix, and vagina. This is the female reproductive system or organ. It includes ovaries, produce ovum or egg. It is called primary sex organ of female. Female का ये primary sex organ है. A pair of oviducts, that is fallopian tube are here. Fertilization where it is occur fallopian tubes in the ampulla region. A wider part is called ampulla. Wider parts, उसी parts में fertilization होता है. Uterus means womb. Here the implantation occurs. Implantation, जहाँ पर implantation होता है उसको womb बोलते हैं. And cervix and vagina both combinedly called, it is the birth canal. Natural birth canal. नेचुरल डिलीवरी में जो होता है, नेचुरल डिलीवरी में बर्थ होता है उसको बर्थ कैनाल बोलते हैं. This is include the female reproductive system. And here the now we discuss one by one ovaries. Okay, what is ovary? Primary sex organ. जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो वो क्या करता है कि एग का प्रोड्यूस करता है. कौन? ओवारीज. उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी. प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवारी. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवारी. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवारी कैसे होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर, दिस इज द ओवारी. ओके, this is the internal structure of ovary. Here one layer is outer layer and inner layer present. Outer layer present. This is the outer layer and one is inner layer present. This is the tunica albuginea, that is called thin epithelium. Outer layer is called, this is the thin epithelium. Inner layer tunica albuginea. This is the cortex and medulla. This is outer part is called cortex and inner part is called medulla. Here ovaries come some blood vessels. Here some come blood vessels. यहाँ पर blood vessels कुछ आता है ऐसे, ठीक है, nerves and blood vessels. तो उसी blood vessels यहीं से आता है, उसको बोलते हैं peritoneal passage. That is called peritoneal passage. In this passage, arteries, vein and nerves टिश्यू फॉर्म. आर्टरीज जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, वेन्स जो डिऑक्सीजनेट ब्लड को लेगा, नर्व्स कुछ सिंबल आएंगे, उसी में कुछ हार्मोन का ट्रांसफर होगा. ठीक है. और जो यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलपमेंट होता है, क्या होता है?
वहाँ पर कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलपमेंट होता है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल्स एंड ग्राफियन फॉलिकल्स। देन एग रिलीज हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज हो जाता है, वो कॉर्टेक्स रीजन में होता है। जो प्राइमरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल्स है। दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स एंड दिस इज द सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, एग रिलीज हो जाता है, ओवारियन, दिस इज कॉल्ड ओवारियन कॉर्टेक्स। ओवारियन कॉर्टेक्स में क्या रहता है, जो हमारा फॉलिकल्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ग्राफियन फॉलिकल्स, फिर हमारा सेकेंडरी ओसाइट यहीं से क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होकर सेकेंडरी ओसाइट आता है। सेकेंडरी ओसाइट आगे जाकर एग और ओवम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवारी, okay, this is the internal structure of ovary, and ovary connected with the pelvic wall, ovary connected with the pelvic wall with the help of ligament। ये pelvic wall में कैसे कनेक्ट होता है, एक ligament, ovary connect with pelvic wall with the helps of ligament, लिगामेंट से पेल्विक वॉल में कनेक्ट होकर रहता है, यूटेरस में कनेक्ट होकर रहता है, ओके। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द नेक्स्ट, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लस मामरी ग्लैंड, नॉट ए फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, इट इज द एसेसरी organs that is help to secrete milk, and this milk help to nourishment to young one, okay। And next we discuss what is the diagrammatic view of the what is female reproductive system, diagrammatic view of the female reproductive system, this is the female reproductive organ, and this is the female reproductive organ. Now we discuss what is the one by one. This is the fallopian tube. First we draw the diagram. Now ovaries, draw the ovaries. This is the ovary connected with the ligament with the uterine wall. This is the ovary, and this is the fingriae. This is the cervix. Now one by one we level it. You see the oviduct, isthmus,
isthmus. This is the wider range ampulla, and this is the fimbriae. Finger-like projection that collect to the egg. This is the uterus, and it is the uterine cavity. This is the cervix. This is the vagina. These two are common, is called बार्थ कैनाल. बार्थ, इस दोनों को हम क्या बोलते हैं? बार्थ कैनाल बोलते हैं. जो ओवारी से है, ओवारी क्या है? एक लिगामेंट के जरिए क्या है? पेल्विक्स वॉल में ये कनेक्ट है. ठीक है, पेल्विक्स वॉल और यूटेराइन वॉल में क्या है? कनेक्ट है. इसी द ओवारी, pair of ovaries present. This is, and here the uterus also contain three layer. One is endometrium, one is innermost layer, endometrium, middle layer mesometrium, and outer layer is the perimetrium. This is the fundus, ovarian fundus, wider range. This is the fallopian tube. Both three are also called isthmus ampulla, and isthmus ampulla infundibulum. This is called infundibulum. Both three are called oviduct or fallopian tube. तीनों को fallopian tube बोला जाता है. And here the abdominal ostium present. Here abdominal ostium. What is this? Abdominal ostium. These are help to capture egg और ओवम को ये क्या करता है? कैप्चर कर लेता है और अंदर लेकर जाता है. ठीक है, ये है हमारा स्ट्रक्चर. वेजाइना इन सर्विक्स, द बार्थ कैनाल, यूटेरस है. जब हमारा एग यहाँ पर रिलीज होता है, एब्डोमिनल ओस्टियम जो है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड फिंगरिए, हेल्प टू कैप्चर द एग विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल ओस्टियम, एंड उसके अंदर जाएगा, जहाँ यहाँ पर एम्पुला तक पहुँच जाएगा. ठीक है, एम्पुला में आ जाएगा एग. एम्पुला में आने के बाद जो हमारा इंसेमिनेशन हुआ, इंसेमिनेशन का प्रोसेस से क्या आया? जो स्पर्म हमारा यहाँ तक आ जाता है विद द हेल्प ऑफ टेल. मोटाइल है स्पर्म, क्या है? एक मोटाइल है. यही से इंसेमिनेशन और डिपोजिशन ऑफ सीमेन होगा. सीमेन से यहीं तक क्या जाएगा? हमारा स्पर्म का क्या होता है? टारगेट रहता है कि एम्पुला तक आ जाए, फॉलिपियन ट्यूब तक आ जाए. इस्थेमस मतलब क्या? एक नेरो रीजन, एक ट्यूब का, फॉलिपियन ट्यूब का नेरो रीजन को हम इस्थेमस बोलते हैं. और एम्पुला मतलब क्या है? एम्पुला मतलब कि वाइडर रीजन. यहाँ पर क्या होगा? स्पर्म का आ जाएगा, मीट करेगा, इन फर्टिलाइजेशन होगा. एम्पुला, दिस रीजन इज फर्टिलाइजेशन ऑकर्स. फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगा. ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये एग सेल जाइगोट बन जाता है. दिस जाइगोट फर्दर ट्रैवल टू द जाइगोट, आकर यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाता है. कहाँ पर? यूटेराइन वॉल में. कौन सा वन लेयर में? एंडोमेट्रियम में. एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम, हियर द वी डिस्कस एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एंड मेसोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम इज द इनर एंड ग्लैंडुलर लेयर. क्या है? इनर एंड ग्लैंडुलर लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. जो अंदर जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, कुछ ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसलिए उसको ग्लैंडुलर लेयर बोला जाता है. एंड मेसोमेट्रियम इज द मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स. इट इज द मेसोमेट्रियम मिडिल लेयर एंड स्मूथ मसल्स. एंड पेरीमेट्रियम इज द external membranous layer. External membranous
मेम्ब्रेनस लेयर। जब यहाँ पर पार्चुरेशन होगा, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी, नेचुरल बर्थ होता है, तो मेसोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। कैसे? वहाँ पर LH आ जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वहाँ पर इंड्यूस होने के बाद ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कौन सा? मेसोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। फिर सर्विक्स और बार्थ कैनाल जो वेजाइना से ये हमारा क्या हो जाएंगे, आँखें ओपन होने लगेगा और ये नेचुरल डिलीवरी हो जाता है। ठीक है, ये है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर कंप्लीट। दिस इज द फोनेल शेप। इन्फंडिबुलम मतलब क्या है? फोनेल शेप। ये फोनेल शेप है यहाँ पर इन्फंडिबुलम है। ठीक है, फोनेल जैसे रहता है, इन्फंडिबुलम है। और क्या है यहाँ पर? टोटल सर्विक्स, बर्थ कैनाल है। सर्विक्स इज द एक्सटेंशन ऑफ द यूटेरस का एक्सटेंशन है। ये सर्विक्स क्या है? एक्सटेंशन ऑफ यूटेरस है। दिस टोटल पार्ट इज कॉल्ड, दिस टोटल पार्ट इज कॉल्ड द यूटेराइन बॉडी। क्या बोलेंगे उसको? इसको हम यूटेराइन बॉडी। यहीं से यहीं तक क्या है? यूटेराइन बॉडी। यूटेराइन, यूटेराइन बॉडी है ये टोटल यूटेरस है। यहाँ पर क्या है हमारा? ओविडक्ट और फॉलिपियन ट्यूब है। ये टोटल स्ट्रक्चर क्या है? यूटेराइन बॉडी है। ठीक है, एंड हिज द नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द ऊम्ब। ऊम्ब मतलब क्या है? यूटेरस। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। यूटेरस, यूटेरस, ऊम्ब। ठीक है, यहाँ पर 3 लेयर्स रहते हैं। 3 लेयर, 1 लेयर पेरीमेट्रियम, मेसोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ये क्या है? पेरीमेट्रियम ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है और इनर लेयर है। इनर लेयर ये स्मूथ मसल्स का है। मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स और मिडिल लेयर। एंडोमेट्रियम आउटर लेयर क्या है? आउटर लेयर एंड दिस इज द एंडोमेट्रियम इज द आउटर लेयर। ठीक है, ये तीनों ये हमारा ऊम्ब बोला जाता है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन, इफ फर्टिलाइजेशन डोज नॉट अकर द मेसोमेट्रियम, द इनर लेयर क्या होगा? वो डिजेनरेट हो जाता है, ब्लड वेसल्स में डिजेनरेट हो जाता है। फिर जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है 28 डेज में, फिर नया मेसोमेट्रियम वहाँ पर अपियर होने लगेगा। यूटेरिन इनर लेयर ऑफ यूटेरस फिर न्यू फॉर्मेशन होने लगेगा। फिर इफ द फर्टिलाइजेशन नॉट ऑकर्स, ब्लड वेसल्स रप्चर, इस मेसोमेट्रियम इज रप्चर, देन ओके ये रप्चर होने लगेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लड वेसल्स वो चला आता है। फिर एक नया साइकिल में फिर ये न्यू डेवलपमेंट होगा, फिर रीजनरेट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो क्या होगा? मेंटेन होके चलेगा। मेसोमेट्रियम इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। वहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, वो भारी जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा वो हेल्प करेगा, उसको डीजेनरेट नहीं होने देगा। एंड द external genital. Now we discuss external genitalia. External. Now we discuss what is external genitalia. ठीक है, एक्सटर्नल मतलब आउट ऑफ सरफेस में जो दिखेगा, आउट ऑफ बॉडी बाहर से जो दिखेगा उसको हम क्या बोलते हैं? वल्वा। वल्वा बोला जाता है इसको, वल्वा। आउटर ओपनिंग ऑफ वेजाइना ओपनिंग, वल्वा इज कॉल्ड वेजाइनल, वेजाइना ओपनिंग को वल्वा बोलते हैं। ये 3 लेयर्स रहता है, बहुत से लेयर्स में रहता है। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लिबिया मेजोरा, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा एंड हाइमेन एंड क्लीटोरिस, क्लीटोरिस। ये चारों हमारा
आउटर क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है, ठीक है, क्लिटोरिस एंड क्या है, मॉन प्यूबिक्स, मॉन्स प्यूबिक, प्यूबिक, ये क्या है, फैटी टिश्यू, डिपोजिशन ऑफ फैटी टिश्यू, डिपोजिशन ऑफ फैटी टिश्यू। एंड यहाँ पर क्या होगा, जब हमारा प्यूबर्टी में आ जाते हैं स्किन, कुछ हेयर डेवलपमेंट हो जाता है, इसके ऊपर हेयर ही रहता है। एंड नेक्स्ट इज द लिबिया मेनोरा, मॉन्स प्यूबिक इज द फ्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड विथ स्किन एंड प्यूबिक हुआ है, उसको हेयर को क्या बोला जाता है, प्यूबिक, तो प्यूबिक प्यूबर्टी में पड़ता है उसको प्यूबिक हेयर। नेक्स्ट इज द लिबिया मेजोरा, फ्लैशी फोल्ड एक्सटेंड फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिक, ठीक है, फ्लैशी फोल्ड opens to mons pubic, mons pubic तक एक्सटेंड होके रहता है, ठीक है। फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है ये। लिबिया माइनोरा इज द लिबिया माइनोरा अंडर द लिबिया मेजोरा, इसका लिबिया मेजोरा के अंडर रहेगा, अंडर द लिबिया मेजोरा, लिबिया मेजोरा के अंडर प्रेजेंट रहेगा। एंड हाइमेन कवर द वेजाइनल ओपनिंग, इट इज कवर द वेजाइना ओपनिंग, वेजाइना ओपनिंग से ये कवर होके रहता है। क्लिटोरिस इज द एक्साइटेबल, मतलब इरेक्टाइल टिश्यू, इट इज इरेक्टाइल टिश्यू, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एंड इज द situation in the upper junction of, it is situated in upper junction of लिबिया मेजोरा, लिबिया मेजोरा के अपर प्रेजेंट रहेगा क्लिटोरिस, ओके। एंड हाइमेन कवर्स द वेजाइनल ओपनिंग एंड इट इज द परफोरेटेड कवर, परफोरेटेड कवर, दैट इज द पोर्स वहाँ पर प्रेजेंट रहता है, फोर्स प्रेजेंट रहता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स डिजेनरेट होके आ गया उससे बाहर आ जाता है, ठीक है, ये हाइमेन है, ठीक है। आई कैन ऑल्सो ब्रोकन बाय द सडन फॉल, हाइमेन ऑल्सो ब्रोकन बाय द सडन फॉल, हॉर्स राइडिंग, बाईसाइकिल राइडिंग, ये फल हो जाता है। इट इज ब्रेकिंग ऑफ द हाइमेन इज नॉट ए प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी। स्पोर्ट्स पर्सन, सम फिजिकल एक्टिविटी, द हाइमेन्स ऑल्सो ब्रेक डाउन, ओके। दिस इज द आउटर जेनिटल, एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ द व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। नेक्स्ट इज द मामारी ग्लैंड्स, ठीक है, मामारी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ऑल फीमेल mammals, present in all function in all female mammals, but not function in the males, मेल्स में फंक्शनिंग नहीं है, फीमेल में ये बस फंक्शनिंग करता है। जैसे फीमेल का बर्थ करते हैं तब क्या होता है, मामारी ग्लैंड से मिल्क सिक्रेशन होता है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन यहाँ पर इंड्यूस होगा, फिर वहाँ पर सिक्रेशन, मिल्क सिक्रेशन होगा। पेयर कंटेंट द ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस फैट, यहाँ पर क्या रहेगा, ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस फैट, कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा और फैट, ठीक है। 15 to 20 मामारी लोब्स प्रेजेंट, 50 to 20 mammary lobes present, 15 to 20 mammary lobes here present, and mammary lobes contain the alveoli, and mammary lobes contain alveoli, एल्वियोलाई वो कंटेंट करके रखेगा। कुछ एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई हम पढ़े थे कि वहाँ पर लंग्स में था, ऐसे बेलून लाइक स्ट्रक्चर है, एल्वियोलाई प्रेजेंट रहता है। एंड हियर द मिल्क स्टोर इन द कैविटी ऑफ ल्यूमेन, यहाँ पर इस एल्वियोलाई में, ल्यूमेन में क्या होगा, मिल्क स्टोर होके रहता है, ठीक है। नाउ वी ड्रॉ द डायग्राम,
नो द डायग्राम ऑफ द मामरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये क्या है हमारा एक रिब्स है। ठीक है, 7 रिब्स, 7 रिब्स है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये रिब्स है। रिब्स के पास हमारा कितने लोब्स प्रेजेंट रहते हैं? मामरी लोब्स 15 to 20 मामरी लोब्स प्रेजेंट। हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा? ये फैट, डिपोजिशन ऑफ फैट्स प्रेजेंट है। डिपोजिशन ऑफ फैट प्रेजेंट है। ये क्या है हमारा? फैट। ठीक है, ये क्या है? रिब्स। ये मामारी लोब्स, मामारी लोब्स दे सीक्रेट, सीक्रेट मिल्क, मिल्क सीक्रेट करते हैं ये। ठीक है, ये क्या सीक्रेट करेंगे? मिल्क सीक्रेट करेंगे। ठीक है, एंड मामारी डक्ट, यहाँ से क्या आ जाएगा? एक डक्ट आ जाएगा, सब एक डक्ट, मामारी डक्ट। ये क्या है हमारा? दैट इज कॉल्ड मामारी डक्ट। वहीं से जो सिक्रेशन करेगा, मामारी लोब्स जो सिक्रेशन करेगा, ये क्या है? मामारी डक्ट। एंड हियर द एम्पुला, हियर द वाइडर रीजन इज कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला स्टोर करके रखेगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे। एंड हियर द निपल्स प्रेजेंट, lactiferous duct. This is the lactiferous, lactiferous duct, and here it is the nipples, nipples, and this is the surrounding tissue darkening. It is the areola, that is called areola, एरियोला। ये से हमारा सिक्रेशन होता है। और मामरी लोब्स में क्या रहता है? एम्पुला प्रेजेंट, सॉरी एल्वियोलाई प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहेगा वहां पर? एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई है। यहीं से हमारा क्या होगा? ये एल्वियोलाई, दिस इज कॉल्ड एल्वियोलाई। दिस इज द कंप्लीट structure of the mammary glands. Okay, I hope you have understanding. Now we discuss what is the first secretion of milk. Secretion, what is? alveoli, यहाँ पर alveoli से मिल्क सिक्रेशन होगा। फिर मामारी लोब्स, alveoli से मामारी लोब्स तक आ जाएंगे, यहीं तक। दैट इज कॉल्ड मामारी लोब्स, मामारी लोब्स। मामारी लोब्स के बाद आ जाएगा हमारा मामारी डक्ट। ठीक है, मामारी लोब्स, फिर मामारी, मामारी डक्ट। ये है लेक्टिफेरस डक्ट और मामारी डक्ट। मामारी डक्ट, ठीक है, मामारी डक्ट के बाद आ जाएगा हमारा एम्पुला, जो वाइडर रीजन, एम्पुला। एम्पुला के बाद हमारा आ जाएगा लेक्टिफेरस, लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट, फिर निप्पल। ये है पाथवे ऑफ द मिल्क सिक्रेशन। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज, ओके, okay, this is the complete female reproductive organ. Next we discuss what is the spermatogenesis and oogenesis. Okay, thank you.